Hi friends, मैं सोनिया सेठी. I'm back with the series of coaches. In this series, we will talk about how to pick a coach. What are the qualities we should look into a coach? जिसके भरोसे अपने बच्चे को हम छोड़ रहे हैं, उसके बारे में इतना जानना तो बनता है. You've not been able to like represent your country. If someone from my academy or कोई भी बच्चा अगर represent कर देता है, that will give me immense happiness. So that will be a proud moment. Okay. फुटबॉल का आपको क्रेज कब से है? So I started when I was 9 years old, 10 years old. So it's been 20 years my journey with football. Okay. So I played for like Delhi State when I was 17, and I've still 2 years back also I was playing for a Delhi-based club. And I started my academy back in 2013 December. I always had the passion. I was working corporate. मैं corporate में काम कर रहा था, but मुझे एक होता है कि फुलफिलमेंट या एक आपके अंदर से होता है कि एक पैशन है तो उसको फुलफिल करने के लिए. So I started my academy back in 2013 December. Now I have like 35-40 kids. The name of my academy is United School of Football. Okay. It's like USF. So we are based out at 2 centers in Delhi. One is at Paschim Vihar and the other one is at Panjabi Bagh. Panjabi Bagh center हमने last year ही स्टार्ट किया था and उधर पे रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है. We started with 6 kids and now we have like 25-30 kids over there. Okay. So I've done my engineering. I'm like from electronics and communication background. Oh. And then I started working with Wipro. Wipro was my first company. I used to play football since school time. University level, I have represented my university in Punjab as well. And after that, I went on to work for HCL for a Google project. So I was working for a Google project back in the Gurgaon office, the Google's Gurgaon office. But then you had that like you're working in the day, but you know there's something was missing. So I always felt that. So with my corporate job, I started my academy as well. And what happened in 2018-19, my shift got changed. So usually I used to work morning shift, but that shift got changed and I was put into the evening shift. Okay. Because of that, I was not able to take my sessions. Then in 2019, I took up a step. Thought like if I have to do this, I should do it like fully. So in 2019, I left my corporate job. With kids has always been like my dream, and I love to work with kids. मेरे पास 4 साल से बच्चे आना शुरू हो जाते हैं. I have like small girls, little girls, little boys. So if you do, because now you think like if you've not been able to like represent your country, if someone from my academy or कोई बच्चा अगर represent कर देते हैं, that will give me immense happiness. That will be a proud moment. ओके. सो कहीं ना कहीं आपका एक ड्रीम रहा कि आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाएं. हाँ जी. स्पोर्ट्स हैज ऑलवेज बीन लाइक आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल बहुत ज़्यादा. आज भी मैं क्रिकेट फुटबॉल व्हेनेवर आई गेट अ चांस. आई ऑलवेज ट्राई कि वो भी मैक्सिमम टूर्नामेंट्स खेलें, हर जगह जाएं. जीत हार इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. पुटिंग योर 100% इज इम्पॉर्टेंट. आप वो करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट विल ऑल्सो कम. लाइक राइट नाउ वी आर अंडर 9 चैंपियंस ऑफ लाइक वेस्ट दिल्ली. सो और खेलो इंडिया लीग में वी स्टूड सेकंड इन दिल्ली, which is a big achievement. Started from like a small park. और अगर हम दिल्ली में अगर नंबर 2 या नंबर 3 या इवन टॉप अगर हम आ रहे हैं, so that's a very big achievement and I want to continue that with my kids. So that's it. So what is your coach mantra? So my coaching is like I'm not a buy a book person. Like I've like done my badges, I've done my degrees, like from the coaching, like I've done my license. But what I teach like and what I try to communicate is what I've learned from my coaches. Like when I was so first of all, like when my session starts, so there is a set routine. Like first when you come, you respect the field where you are playing. You should see if there is any like कोई वहाँ पर कोई गंद नहीं होना चाहिए. There should not be any dirt or taint. तो आप उसको साफ करें क्योंकि उस फील्ड ने ही आपको सब कुछ देना है. So that field will make you a player. So वो जो भी हमारी जगह उसको पहले साफ करके start your warm up. You should not be concerned whether your coach is there or not. He can be late, but if your session starts at 9, you should be there by 8:55. Simple as that. कोच अगर लेट है तो ये रहेगी ना, हमने we should start our warm up. हमने warm up करें अपना जो हमें बताया गया है, उसके बाद हमें बॉल वर्क करना है जो करना है. Then listen to the coach. जो हमारी drills हैं वो है. And I work like I have my set of drills जो मुझे एक दिन में कराना होता है. I have that set in my like agenda कि मुझे आज ये drills करानी है. And the thing is to make them repeat the same thing again and again. तो जितने अगर आज हम 50 टो टैप्स करते हैं, कल हम 100 करेंगे. आज हम 50 किकअप्स करते हैं, कल हम 100 करेंगे. ग्रेजुअली अगर हम इंक्रीज करते रहेंगे और फिर उनको जितने मैचेस खिला सकते हैं. लाइक एवरी 2 months आई हैव माई ओन लीग. मेरी 2 सेंटर्स हैं अकेडमी के. आई मिक्स देम और एक जगह पे मैं उनकी लीग कराता हूँ, जितना इंटरनल लीग, सो दैट मुझे अपना बेस्ट टैलेंट पता चलेगा. सो अगर मुझे अपना बेस्ट टैलेंट नहीं पता होगा तो आई कैनॉट पुट फॉरवर्ड लाइक अ ग्रेट टीम. मुझे वो टैलेंट मैं उसको करता हूँ. एंड देन
जिनका थोड़ा कम है लेवल या जो अभी नहीं परफॉर्म कर पाए उन पे ज़्यादा काम करते हैं। तो जो अच्छा कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, और जिनको थोड़ी ज़रूरत है उन पे ज़्यादा काम करें, सो दैट दे कम ऑन टू दैट सेम लेवल एंड देन कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर, एंड इवेंचुअली वो दूसरों के साथ जब कम्पीट करेंगे देन रिजल्ट भी होगा। हमारे टाइम में इतने चांसेस नहीं होते थे शायद। जैसे मैं आपको बताऊँ, व्हेन आई वाज लाइक 10 years old तब हमने स्टार्ट किया था, एंड आई प्लेड इन JLN स्टेडियम, जो हमारा प्रीमियर स्टेडियम है दिल्ली का। आई प्लेड ओनली लाइक 2-3 times ओवर देयर, बट आज जो मेरे बच्चे 9 साल के, they have played like 20 times over. So it gives you happiness कि वो stadium, but they don't know the value of it अभी right now, because जो वो stadium है जहाँ इंडिया टीम खेलती है, तो अभी वो 9 साल के हैं, but जो experience उनको अभी मिल गया है, so going forward it will be like very helpful for them. So मतलब आज की डेट में एक्सपोजर बहुत है बच्चों के लिए, वो तो बहुत पेरेंट सपोर्ट देन देयर इज लाइक obviously yes, पेरेंट्स का सपोर्ट भी, आजकल पेरेंट्स भी थोड़े मॉडर्न है, एंड यस दे आर टेकिंग अप स्पोर्ट्स वेरी, लाइक जितना स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, सब एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। आई गेस स्पोर्ट्स लाइक स्पोर्ट्स, बट स्पोर्ट्स हेल्प्स यू इन इट कि वो आपका ओवरऑल कैरेक्टर एक बिल्ड करता है। आपको अपने आप को पेज करना आता है, अपने आप को कंडक्ट करना आता है कि मुझे डिसिप्लिन में किसी भी चीज़ में, अगर आप स्पोर्ट्स में आपको पता है कि एक सेट ऑफ रूल्स को आपको फॉलो करना है, आपको अपने आप को अप्लाई करना है, यहाँ पर आपको 100% अपना देन आउट ऑफ द स्किन जाके परफॉर्म करना है। तो अगर आपने उसमें करना शुरू कर दिया तो फिर जो अदर फील्ड्स हैं, जैसे आपके एकेडमिक्स हैं या और तो आप उधर भी आप परफॉर्म करना लगेंगे। सो इट हेल्प्स यू, आपके हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है, आपका हैंड लेग कोऑर्डिनेशन होता है, स्पोर्ट्स हेल्प यू विद एवरीथिंग। बट अल्टीमेटली वो है जो डिसिप्लिन और जो वो परसिवरेंस सिखाती है एक प्लेयर को, तो वो उसको लाइफ लॉन्ग मदद करेगा, बिकॉज नॉट एवरीवन कैन प्ले फॉर द कंट्री, दे विल बी डूइंग समथिंग एल्स प्रॉब्ली, बट वो अगर वो भी काम करेंगे ना, दे विल गिव द 100%, एंड आई गेस लाइक मोर देन 100%, बिकॉज 100% इज नॉट इनफ आज की डेट में। आई गेस वो जो एक्स्ट्रा 1% है, जो एक्स्ट्रा 101% मैं हमेशा बोलता हूँ अपने प्लेयर्स को, भाई 100% तो देने वाले बहुत मिल जाएंगे, और जो 101% देगा ना वही फिर एक पे रहेगा। तो नंबर 1 को ही लोग जानते हैं। आई गेस वी शुड स्ट्राइव फॉर परफेक्शन, बिकॉज एवरीवन नोज हु लैंडेड ऑन मून फर्स्ट, नोबडी नोज द सेकंड पर्सन। दैट्स द थिंग। यहाँ पे कई कोचेज हैं जो नहीं आए, कई टीम्स अकेली आई हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि व्हाई अ कोच इज इम्पोर्टेंट? आई गेस जैसे इट्स लाइक अ पेरेंट किड रिलेशनशिप। आप जब देते हैं कि आप बच्चों को भेजते हैं तो यहाँ पेरेंट्स भी आते हैं। आई हैव नॉट सीन, यहाँ पर 1-2 पेरेंट्स भी अभी जैसे नहीं आए थे, तो आई हैव सीन पेरेंट्स, तो पेरेंट्स भी आते हैं बच्चों के साथ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, बिकॉज स्पोर्ट्स में भी देयर आर मोमेंट्स कि आप पे कभी फाउल हो गया, आपसे कोई गलती हो गई, यू नीड समवन जिसको आप देख सको, जिसकी तरह यू कैन मोटिवेट यू, या आपकी गलती भी बता सके, बिकॉज कोच इज समवन जिसने वो लाइफ, वो फुटबॉल, वो ज़्यादा साल देखे हैं उस फील्ड पे, तो ही नोज की क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और किन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। बच्चों भी होता है कि देयर इज ऑलवेज अ वीक मोमेंट जो आता है, कोच को वो आइडेंटिफाई करना है कि अगर वो आ गया, कोई टैलेंट होता है, आपको पता है आपके बच्चे में कितना टैलेंट है, बट वो कई बार एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, वो गलती से थोड़ा बॉक डाउन हो गया, तो आपको राइट टाइम पे उसको मोटिवेट करना, वो आना चाहिए। उसको क्या चीज़ें वो गलत कर रहा है या क्या बेटर कर सकता है वो आप बता सकते हो। तो उस वे में कोच बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं तो हमेशा ही अपनी अंडर 17, अंडर 19, अंडर 11, 13, 15, 17 जब भी मेरे मैचेज होते हैं, आई बीन ऑलवेज देयर। स्टेमिना चाहिए, माधव, कम ऑन, स्टेमिना, आर्यन, स्टेमिना। अरे गो 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 गो। नॉट गोइंग ऑन द बॉल बेटा, कॉर्नर है, पीछे कवर करो, कवर कवर। आई हैव सीन कि प्लेयर्स कहीं नहीं आए शायद, बट आई हैव ऑलवेज बीन देयर, एंड वो होना भी चाहिए, बिकॉज अगर आपका पैशन है, अगर आप आ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, जीतने के लिए खेल रहे हैं, तो यू शुड बी लाइक दिस, यू शुड बी देयर फॉर योर किड्स। तो वो नहीं आते, दैट्स देयर फॉर, बट आई आल्सो मेक श्योर कि माय टीम इज ऑलवेज देयर। अच्छा, कई बार क्या होता है फील्ड में यू फील कि बायस्ड हो रहे हैं, या कई बार ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, गेम में ये मैटर नहीं करता, बट बिकॉज यू हैव यंग किड्स, तो हाउ डू यू calm them down, और how do you ask them to manage at that point of time, because anger उस समय हाई होता है, which is a part of distraction। हाँ जी, ठीक है ना। तो अगर गुस्से में, एंगर में, तो यू विल ऑलवेज आप अपना ही नुकसान करें। ऑन द फील्ड आप देखेंगे जो बेस्ट ऑफ द प्लेयर्स हैं, लायनल मेसी है, रोनाल्डो है, तो आप देखेंगे कि वो अपनी गेम पे ही फोकस करते हैं। देयर आर डिसीजन गोज अगेंस्ट देम, बिकॉज रेफरी की विसल इज सुप्रीम। अगर आपने रेफरी ने विसल बजा दी, यू कांट डू एनीथिंग।
आपको चाहे लगे ना लगे, दैट डजंट मैटर, बिकॉज उसकी जो विसल है दैट्स द फाइनल थिंग। तो अगर आप उससे इफेक्ट हो रहे हैं और उससे आपकी गेम इफेक्ट हो रही है, सो यू विल नेवर बी अ ग्रेट प्लेयर। देयर इज डिफरेंस बिटवीन जो एक अच्छे प्लेयर होते हैं और जो एक ग्रेट प्लेयर होते हैं। तो वही होता है जिसका कंपोजर है, जिसके अंदर डिसिप्लिन है, जिसको अपने आप को उस मोमेंट पे कंट्रोल करना आता है और उसको पता है कि एक विसल से मेरा टैलेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरी गेम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। विसल मेरे लिए तब भी बचेगी व्हेन आई विल स्कोर अ गोल। उस टाइम जो है वो रखना अपने अंदर कि यस, तो आई कैन डू इट अगेन। अगर एक गलती भी हुई या एक रेफरी की भी हुई तो इट शुड नॉट गो इनटू योर हेड, नॉट सक्सेस नॉट फेलियर, इट शुड नेवर गो इनटू योर हेड। आपको अपना गेम पे उस टाइम फोकस करना, अपना कंपोजर रखना, अपनी टीम के लिए काम करना, बिकॉज अल्टीमेटली वो गेम के एंड पे स्कोर मैटर करता है। अगर वो स्कोर 2-1 जीत गए या 3-1 जीत गए तो बीच में कितने फाउल हुए थे, रेफरी ने क्या किया था, वो मैटर नहीं करता। एट द एंड द फाइनल स्कोर मैटर्स। जब तक वो नहीं होता, अपना कंपोजर रखना और अपनी टीम के लिए काम करना। Okay. Any message for the kids? आई गेस जब भी हम यंग होते हैं, आई गेस फर्स्ट थिंग इज पेरेंट्स एज वेल। तो पेरेंट्स को भी पहले इनिशिएटिव लेना, बिकॉज पहली बार क्या होता है कि अब मेरी एकेडमी में भी हमारा एक चीज़ है कि हम कहते हैं कि बच्चे को पहली बार हमारे पास पेरेंट्स लेके आते हैं, दूसरी बार हम लेके आते हैं। अगर हम इफ वी आर गुड इनफ तो बच्चा दोबारा आएगा, और अगर बच्चा आना चाहता है तो पेरेंट्स डेफिनेटली आजकल सपोर्ट भी करते हैं। बट फर्स्ट टाइम दे शुड टेक देम, बिकॉज क्या है कि अब कोविड के बाद से भी हम देख रहे हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन, मोटर स्किल्स इतने वीक हो गए हैं, बच्चे 2-2, 3-3 साल अंदर रहे, देयर इम्यूनिटीज आर वीक। सो उनको हमें इन्वायरमेंट में डालना पड़ेगा, दे कैन कम्पीट जहाँ पर लोग कर रहे हैं। तो वो जब फर्स्ट टाइम आप आओ तो दे आर लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं, टीम स्पोर्ट्स हैं। आप आजकल बहुत सेंटर्स हैं, लॉन टेनिस के सेंटर्स हैं, फुटबॉल के हैं, क्रिकेट की अकेडमी है। तो बच्चे का कहाँ पर ध्यान है या क्या उसको पसंद है, यू कैन सी टीवी पे है या कोई गेम खेलता है, ई गेम्स खेलता है, तो उस पर पता चल जाता है कि उसका किस तरफ इंक्लिनेशन है। यू कैन गिव हिम अ टेनिस बॉल, अगर उसको क्रिकेट पसंद है, यू गिव हिम अ फुटबॉल, अगर उसको फुटबॉल पसंद है, और देन यू पुट हिम देयर लाइक फॉर 1 मंथ, कोई भी 2 अलग अलग स्पोर्ट्स में सेंड करें, जहाँ आपको लगता है उसका परफॉर्मेंस है, जहाँ पर वो कर सकता है, उसको सपोर्ट कीजिए। और साथ में जो वहाँ पर कोचेज हैं उनसे बात करिए कि हमारे जो बच्चे हैं कि वो कैसा कर रहे हैं, हाउ दे कैन इम्प्रूव। और वो अगर उनका रिजल्ट अच्छा आ रहे हैं और बच्चों को लगता है कि वो स्पोर्ट्स में आगे निकल सकता है तो उसको सपोर्ट कीजिए। एंड पेरेंट्स करते भी हैं आजकल, कोचेस का भी काम है बच्चों को सपोर्ट करना कि भाई जो बच्चे कर सकते हैं उनके पेरेंट्स से बात करना है कि येस ही कैन मेक इट बिग, तो उसके लिए आप सोच सकते हैं। सो आई गेस ये वो एक इट्स लाइक ए टीम वर्क, क्योंकि जो बच्चा भी जब बहुत छोटा होता है तो उसको कई चीज़ें पसंद होगी, आपको पता है, बट उसको जो वे है, उसको जो रास्ता है, वो पेरेंट्स और मेंटर और कोचेस ही दिखाते हैं। तो उसमें हमारी ड्यूटी बन जाती है। सो इफ़ वी आर डूइंग अ ड्यूटी बेस्ट, तो आई गेस वो बच्चे का फिर फ्यूचर निकल के आता है आगे, एंड होपफुली वो एक दिन अपने देश को या अपनी फैमिली को, जिसको भी प्राउड करेगा। अल्टीमेटली तो लाइक एवरीवन इज हैप्पी। अगर यहाँ पर अब मेरी एकेडमी का कोई बच्चा नहीं है, बट स्टिल इफ समवन प्लेस फॉर इंडिया, आई विल बी हैप्पी। डजंट मैटर कि वो मेरी एकेडमी से है, किस एकेडमी से, इट्स जस्ट दैट कि फाइनली तो वो मेरे देश को रिप्रेजेंट करता है, या वो एक ही इज मेकिंग दिल्ली प्राउड, इवन माई स्टेट प्राउड और माई कंट्री प्राउड। दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर मी। Lesson of the day: you have to be disciplined, show your gratefulness to the ground, and be passionate towards your dreams. This coach teaches us how to stay calm, composed, and how to fight for your rights. If you want to connect with him, do let me know in the comment section below. I'll share his details in the description. Please like, share, and subscribe. Thank you. देखो, अंडरस्टैंड वन थिंग, कोच एक टीम को होता है, उधर भी खिला रहे थे, इधर भी नहीं दिया, इधर भी नहीं दिया आपने मेरी सर, टीम टेनिस की मैच नहीं दिया सर, नहीं दिया। ओके सॉरी, देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग टू, आप समझते हैं।